we are not just an IVF provider. We provide solutioning for all kind of infertility problem. फर्टिलिटी को लेके मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करते हैं? We are little different from rest of the fraternity. कुछ लोगों में डिप्रेशन आ जाते हैं, कुछ लोग में एंजाइटी रहती है. Very precisely and should be handled with care. कई सेंटर्स हैं वो बोलते हैं 100% सक्सेस आउटकम। इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो मुझे लगता है कि 100% तो सक्सेस क्वेश्चनेबल है। वो कहता है कि एक 100% गारंटी है आपकी सक्सेस की, तो पहले दिन पे ही उस पेशेंट को ये सोच लेना चाहिए कि ये देयर इज अ सम पॉसिबल चीटिंग में हैपन टू हिम, बिकॉज IVF कैन नॉट गारंटी अ सक्सेस. फ्यूचर में क्या इस तरह से एम्ब्रॉय लेवल पे ही प्रिसीजन मेडिसिन हो पाएगी कि इनको पहले ही ट्रीट कर दे? AI will never ever gonna have replace doctors. It will always be a doctor with AI. वन फर्टिलिटी मिथ दैट शुड डिसअपीयर फॉरएवर। IVF सब चीज़ों का इलाज कर देगा. Dr. Vipin Chandra, welcome to Medical Value Talks. It's pleasure to host you here. Thank you, dear. Thank you so much. We'll start with the basic question. IVF को लेके जनरल पॉपुलेशन में क्वेश्चंस यही रहता है कि जैसे अगर एक कपल जब आपके IVF सेंटर में आता है तो उसकी जर्नी क्या होती है? आप जनरल भाषा में समझाएंगे? See, first of all, we are not just an IVF provider. हम्म। We provide solutioning for all kind of infertility problem, starting from कि evaluation कैसे करना है. IVF तो बहुत लास्ट का ट्रीटमेंट है. अच्छा उससे पहले बीच में बहुत सारे ट्रीटमेंट आ जाते हैं जी। जो कि अधिकतर लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट होती है. IVF तो बहुत कम छोटे से सेक्शन के लोगों को Okay. जरूरत होती है. ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द काउंसलिंग की भी हमें करनी, पेशेंट को इनफर्टिलिटी के बारे में अवेयरनेस उस जगह से लेकर के बेसिक ट्रीटमेंट्स, इवैल्यूएशन, IUI, OITI एंड देन IVF, ये सारा स्पेक्ट्रम हम केयर का कैप्चर करते हैं. साथ के साथ अगर क्रायो प्रिजर्वेशन या एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, अपने अगर किसी पेशेंट को अपने एम्ब्रियोज या फिर स्पर्म्स या फिर एग प्रिजर्व करने हैं फ्यूचर के लिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं. वी capture or we serve to all the spectrum of the infertility. Now, in this journey, patient definitely as a lead comes to us through various inquiry platforms. Maybe it's a Facebook or a Insta or direct calling or from a print media. There where our call centers engages them with them, and then whichever the center nearby to them, they guide them, help them, help them in and hold them also what kind of investigation they will be requiring and initial ones, and then guide them to the nearest center possible. And then in whole journey, whichever once basic testing has been done and patient has embarked on one kind of a treatment which is best suited for them as per the discussion with the doctor and their own requirement and what they have chosen up, then the journey is having certain on there also we have a certain call centers where they handhold the patients during those milestones also. पेशेंट्स के लिए देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम केयर किसी भी केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं ना तो उनको लगता है कि उनको ना प्रोसेस किया जा रहा है, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। Mhm. किस तरह से उनको ये फील कराया जा रहा, उनको पूरी जर्नी में सपोर्ट किया जा रहा है, प्रोसेस नहीं किया जा रहा थ्रू अ वर्क फ्लो? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि अब एक चीज सेल करने के बाद देयर इज नेक्स्ट थिंग वी आर बीइंग सोल्ड टू। So this is where we are little different from rest of the fraternity. Once we handhold patient reaches to our doorstep, evaluation is happening at a at very individualized level. हम्म। It's not that patient has been asked to do every patient has been asked to do these many tests only. हाँ। ये नहीं होगा तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा. So that's where the differentiation is there, and this is where even our AI is helping us out in All right. that one. So we would differentiate the patient from the very beginning. What is the need of the patient, and that's which is the best suited investigation, best suited treatment plan for them, and which will be the best basis the conditions, patient profiling, as well as their needs. And definitely, other than this, uh, देखो IVF journey is not just a treatment part. It's full of emotions. It has got a trust, it has a hope. कुछ लोगों में डिप्रेशन आ जाते हैं, कुछ लोग में एंजाइटी रहती है. So all these to be meted out very precisely and should be handled with care. Right. First of all, it's a very long journey and with the full of emotions at each and every milestone.
तो we have a counselors available who take care of the patient in each every milestone. सो डेफिनेटली जब पेशेंट पहली बार लैंड करता है तब से लेकर के जितनी भी जर्नी चल रही है, उसमें जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन जगह पे उन इंटरवेंशंस पे काउंसलर्स उनको हेल्प करता है टू मेक देम फील लाइक होम and to support them, give them a trust, give them a confidence and a compassionate care. Definitely doctor also is involved in that one. So this is a differentiating factor for us from other industry as well as in our own fraternity also. राइट। एंड फर्टिलिटी को लेके बहुत सारे टैबूज भी हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करते हैं? सो टेबूज तो अभी भी है। मैं नहीं कहूँगा कि अभी भी हम लोग उस मैच्योर सोसाइटी पे पहुँच गए हैं जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। We still have, but we have already uh, taken up a long way. We have come up a long way. और आज आज के पेशेंट में बहुत अवेयरनेस है। दे आर वेल इन्फॉर्म अबाउट अधिकतर पेशेंट्स जितने आते हैं उनमें से आज के 15 साल पहले ऐसे पेशेंट आते थे जिनको कि कुछ पता ही नहीं होता था और वो छुप छुपा के आते थे। राइट। आज वैसे नहीं आता है। आज पेशेंट आता है, उसको पता होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन शायद यहाँ से मिलेगा। जी। सो दैट जर्नी हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड अप। बट अब आज के पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो ये है, उसे पता तो है बट उसके इमोशंस को हैंडल करना एज़ वेल एज़ उस पेशेंट के हिसाब से उसके इंडिविजुअलाइज़ ट्रीटमेंट के हिसाब से, प्रोग्नोस्टिकेशन के हिसाब से उसको क्या लेना है जी। और क्यों लेना चाहिए, जी। वो अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। राइट। And and I think we are at a transition state where we should start thinking from a preventive treatment rather than a patient centric, treatment centric approach to a वाह! preventive approach. वाओ! सो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आपने बोला और आपने शुरुआत में ये भी बोला था कि आईवीएफ तो वो लास्ट स्टेज है, Hmm. वो शुरुआत का वो नहीं है। तो जब जब पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं और कई पेशेंट तो आते ही बोलते होंगे कि हमें तो आईवीएफ कराना है जी। तो आप उनको कैसे काउंसल करते हैं और उनको किस तरह से गाइड करते हैं कि क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए? नितिन डेफिनेटली आज जितना पेशेंट अवेयर हो चुका है, राइट। जितना वो चैट जीपीटी या क्लाउड से पढ़ राइट। पढ़ के आता है, तो उसको तो इतना तो पता होता है कि मुझे शायद आईवीएफ की ज़रूरत होगी। जी। एटलीस्ट जो पेशेंट एजुकेटेड है। डेफिनेटली टायर 3 और टायर 2 सिटीज़ में अभी भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो उस बारे में अवेयर नहीं हैं, बट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दैट सिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, दे आर वेल वर्स कि मुझे आज मेरी कंडीशन के बारे में वो प्रॉपर्ली रिसर्च करके आता है कि राइट। मुझे क्या चीज़ मेरे को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके सॉल्यूशनिंग के लिए मुझे क्या-क्या ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं। जी। तो जो डायरेक्टली आईवीएफ के लिए आता है, फॉर देम इट बिकम फॉर अस इट बिकम वेरी ईज़ी बिकॉज़ दे आर एट लीस्ट हाफ कुक्ड। ना ओनली हमें उनको बताना, इतना बस बताना होता है कि भई ये ट्रीटमेंट आपका आईवीएफ भी है पर आईवीएफ गारंटी नहीं है। आईवीएफ के अंदर भी बहुत सारी इंडिविजुअलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। राइट। आपका आईवीएफ अलग हो सकता है। सिमिलरली सेम पेशेंट में अगर हम दूसरे पेशेंट हैं सिमिलर पे 2 तरह के पेशेंट 2 पेशेंट हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आप उनके आईवीएफ में कुछ अलग अप्रोच हो सकती है, इनके आईवीएफ में अलग अप्रोच हो सकती है। पेशेंट ए में प्रोग्नोसिस और सक्सेस के आउटकम्स वेरी कर सकते हैं दोनों में, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या चाहते हैं और राइट। उनके लिए बेस्ट क्या सूटेबल है। राइट। सो वो काउंसलिंग करना इम्पोर्टेंट है और वो दैट बिल्ड द ट्रस्ट एंड दिस इज वेयर वी फील लाइक वी हैव अ काउंसलर्स एज वेल एज डॉक्टर्स who are well trained enough to provide these awareness to the patient on the very first go, uh, because it's ये elective treatment है। राइट। इट्स इलेक्टिव ट्रीटमेंट में पेशेंट हैव ऑप्शंस। हाँ। वो कराना चाहता है, नहीं कराना चाहता। अब जहाँ कराना चाहता है तो उसके लिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करना। नाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट, द काउंसलिंग एंड अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। द पेशेंट शुड बी वेल अवेयर फ्रॉम द डे वन कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम के हिसाब से मुझ में मेरे को ये एक्स्ट्रा और इन्वेस्टिगेशन लग सकती हैं, इनकी इतनी कॉस्ट आ सकती है और इसके बाद जो ट्रीटमेंट के मेरे पास ऑप्शंस हैं, जी। इन ए में मेरे को ये इतना सक्सेस के आउटकम्स के चांसेस हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, इसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है, उसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है। लाइक दैट वे दे शुड हैव अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, they can take a very well informed decision on the very first go itself.
राइट। So there is nothing to be kept hidden, means because sorry to say but इंडिया में वो एथिक्स अभी भी आना बाकी है, हुँ, स्पेशली हेल्थ केयर में, जहाँ हुँ, ट्रीटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। राइट, तो वो ट्रांसपेरेंसी फॉर अस आवर कंपनी विजन इज दैट फॉर इंदिरा आईवीएफ द विजन इज टू हैव अ एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टेड ट्रीटमेंट, कंपैशनेट वेरी नाइस। ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। तो ये जो चीज़ है, ये काउंसलिंग से पहले दिन पे ही क्लियर कर दी जाती और आपने जैसे बोला कि पेशेंट जनरली चैट जीपीटी और गूगल को रेफ़र करके आ जाते हैं, बट और ठीक भी है, मतलब अगर आप अपने बारे में रिफॉर्म डिसीजन ले रहे हैं तो दैट्स ऑल गुड, बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, एआई को लेके डाउट भी है और उल्टा फियर है कि अगर एआई कुछ डिसीजन ले ले तो दैट माइट हार्म अस, है। राइट? तो आप पेशेंट को किस तरह से समझाएंगे? बिकॉज आई आई हैव नोटिस कि इंदिरा आईवीएफ में आप एआई का मेजरली यूज़ कर रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करते वक्त ये ट्रस्ट एआई पे कैसे बिल्ड करते हैं? सी पेशेंट ने अपने लेवल पे डेफिनेटली आज मैं कहूँगा वी आर एंटरिंग इनटू एरा वेयर एआई इज मस्ट। आज से 10 साल 15 साल पहले हमने कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा था कि देयर विल बी फ़ोन हु विल बी हैविंग एन एआई एंड हमारे फेस से ओपन अप हो जाएगा, एप्लीकेशंस रन करने लग जाएंगी, सेल्फ ऑटोनोमस ड्रिवन कार्स होंगी, एआई विल कंट्रोल आवर फ्रॉड फ्रॉड कॉल्स एंड स्पैम कॉल्स। सो ये सच हमने आज से 10 साल पहले नहीं सोचा था, और आज जो पेशेंट आता है तो वो ये सोच के आता है कि एआई होगा, पर जब वो एआई का यूज़ खुद इतना कर रहा है, पर जब वो हेल्थ केयर में खुद के ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसमें एक डर होता है। पर मैं कहूँगा एआई व्हेनेवर इट कम्स टू हेल्थ केयर, इट्स एआई इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। वेरी नाइस। Because what it does is it just gives an extra edge to the to the doctor, basis the whatever the patient profiling investigations are there, to augment this kind of patient, for this patient what extra can be done from the investigation point of view, what best suited the treatment from the data driven evidence medicine or precise from the precision medicine perspective, and so that we can do we can hand choose the best treatment available for them and modify according to the evidence which are available. Because when I say AI को मैं को पायलट की तरह समझा, मैं उनको जब अगर लेमन में समझाऊं किसी पेशेंट को, तो मैं कहूँगा कि कोई AI इज लाइक एन को पायलट। It's not he is not driving you, but he is assisting you through the data available, to make a better hmm, solutioning for you, helping the doctor to make a better solutioning for you. So at the end of the day, it's not the AI who is going to treat you. It will be the doctor who is going to treat you, but with the help of AI, which will make the decision for the doctor a more better and more evidence based. हम आज की सिचुएशन पे आते हैं, लगातार फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं एंड स्पेशली यंग प्रोफेशनल जो हर चीज़ प्लान करके चलते हैं, वो अपना इंश्योरेंस प्लान करके चलते हैं, आगे का फाइनेंस प्लान करते करके चलते हैं। आपको लगता है आगे जाके फर्टिलिटी प्लानिंग भी कुछ ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी? Nitin, it is one of the very relevant question in present era. Definitely, we already as a nation we already have a lot of insurance and health schemes, but we are way behind the western parts. And infertility should not be is it is right now the all the insurance packet coverage plans which India is having, they most of them are not covering infertility as such. Right. Now, coming to the patient perspective, yes, just like the people do their financial planning for their retirement as well as for their healthcare insurance, term insurance, medical insurance, I feel now this time has come up where fertility of we through the fertility awareness, fertility kind of a guidance should be there, where minimal biomarkers can be done for the patient to which can be a part of their medical insurance or other insurances, to guide them what to be done for their fertility planning, Right. so that they are more confident and in making decision for their family planning.
एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज विल बी मोर प्रेवलेंट देन एक्चुअली इंटरवेंशन? इट शुड बी बिकॉज़ आजकल जितना जो भी पेशेंट आता है वो हमारे पास तब आता है जब उसको प्रेगनेंसी पाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। हुँ, हुँ, And which is not an ideal solutioning. हुँ, Ideal healthcare model is when patient should come to us before और हमने उसको evaluate कर लिया है और उसके लिए preventive measures कर लिए हैं ताकि एक majority of the patients को majority of the masses को infertility की प्रॉब्लम से का सामना करना ही नहीं पड़ करना रहा ही है। नहीं पड़ रहा है। राइट, So the preventive maintenance, preventive treatment uh, is the need of our or in future down the line 10 years down. मैं चाहूँगा कि India should have a certain investigation be included in the insurance packages, which can give them an idea around what's their fertility potential is राइट। and what decision they can take basis them with the help of doctor. तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं क्या बेसिक जो कि इंक्लूड कर सकते हैं? या फीमेल में सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है ओवेरियन एजिंग का होता है, हुँ, ओवेरियन रिजर्व्स का होता है। हुँ, सो एक सिंपल टेस्ट हो सकता है व्हिच इज़ एएमएच हार्मोनल टेस्ट है, जिससे उसके ओवेरियन रिजर्व कितना है, कब तक उनमें इनफ एम्ब्रियोज इनफ एग्स बनाने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। सिमिलरली एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ट्रांसवाजिनल अल्ट्रासाउंड व्हिच गिव्स एन आइडिया अराउंड कि जस्ट बिकॉज़ एएमएच विल गिव देम एन आइडिया अराउंड ओवेरियन रिजर्व यप, वेल एज द अल्ट्रासाउंड विल गिव देम आइडिया अबाउट कि और कोई पैथोलॉजी तो नहीं है क्योंकि आईवीएफ में इट्स नॉट अबाउट जस्ट एग, ट्यूब्स हेल्दी है कि नहीं है, यूट्रस हेल्दी है कि नहीं है, एंडोमेट्रियम हेल्दी है कि नहीं है। So these two simple tests will give up enough knowledge about the patient, about the fertility potential. On male part, a simple semen analysis is good enough. और जो एएमएच है वो एक ब्लड टेस्ट, एक blood test. एक ब्लड टेस्ट सो सिंपल एक Yeah. ब्लड टेस्ट है वो करा सकते हैं। हाँ. और अल्ट्रासाउंड अ, Yes. क्या एएमएच इंडिकेशन दे सकता है कि अल्ट्रासाउंड कराना है कि नहीं? कि नहीं, कराना नहीं, ज़रूरी है? दोनों दोनों कॉम्प्लीमेंट दोनों दोनों कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड ओके, सप्लीमेंट्री हैं एट द ओके, सेम टाइम बिकॉज़ राइट, एएमएच विल नॉट लेट यू नो अबाउट द कि ट्यूब्स कैसी हैं बिकॉज़ आईवी श्योर, अगर मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी का पोटेंशियल जानना है, तो ट्यूब्स आपकी हेल्दी होनी चाहिए, यूट्रस आपका हेल्दी होना चाहिए। राइट, राइट, या सो ओके, अल्ट्रासाउंड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एएमएच। कूल। सो अब सोचिए 10 साल बाद के जो आईवीएफ क्लिनिक अगर हम सोचें, वो किस तरह के आईवीएफ क्लिनिक आप क्या इमेजिन करते हैं, कैसे होंगे वो? In my sense, there will lot of technology driven system will be there in place. हुँ, हुँ, There will be AI in understanding the patient, in bringing the in making the patient aware, in making this decision about the treatment planning, in making what treatment plan to be done for them. Technology driven, even robotic can also be part of it. Robot आज western side में robo-XC and आ चुके हैं, which can do the complete IVF for a patient without a human touch. बट इस तरह की ज़रूरत नहीं उतना भी नहीं पर लेकिन कई जगह पे ऐसा ऐसा भी होगा कि AI cannot replace human touch, especially for the IVF industry, because as I said, IVF is full of emotions. From starting from the journey, it's like a patient needs a trust building, patient needs a proper counseling, should be empathetic. So AI will be able to provide down the line where 10 साल बाद क्लिनिक्स ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे डाटा ड्रिवन एआई टूल्स एंड एप्लीकेशंस होंगे जो कि गाइड कर सकते होंगे पेशेंट एज अ डॉक्टर को कि हमें इस पेशेंट के लिए क्या कब बेस्ट करना है और कौन सा ट्रीटमेंट प्लान करना है सो दैट बेस्ट आउटकम दे कैन डू AI can help in reducing the time to achieve the pregnancy. But again, her patient अपने आप as I said, every patient is different from each one. To give them कुछ में एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, कुछ में डिप्रेशंस ज़्यादा होते हैं, कुछ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट एआई नहीं कर सकता राइट, है। एआई सो आई सेड AI will never ever gonna replace doctors. It will always be a doctor with AI. राइट। रिप्लेस द डॉक्टर विदाउट एआई You know. राइट। जी, जी, Yes. Yes. बिल्कुल सही सर। और सर आजकल जेनोमिक्स एंड जीन टेस्टिंग का भी बहुत सुनते हैं और बट मुझे नहीं लगता कि
इंक्लूडिंग मी, मोस्ट ऑफ द लोग इसको समझते हैं। सिंपल शब्दों में आप बताएँगे कि ये किस तरह से मे बी फर्टिलिटी में हेल्पफुल हैं? Nitin, along with the AI, another important change which we are seeing these days is genomics, and which will bring a big impact in the how we pursue the treatment, how we design a treatment for anybody in future. Now, what is genomics? अगर मैं साधारण शब्द में बोलूँ तो जीनोमिक्स इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। सो ब्लूप्रिंट इन द सेंस जैसे हमारे घर का एक ब्लूप्रिंट होता है, हुँ, हुँ। उसी तरह से हमारी बॉडी का भी एक ब्लूप्रिंट है, उसको हम जीनोमिक्स बोल सकते हैं। ओके। सो इस ये वो डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी फंक्शन कैसे करेगा, इसमें खराबियाँ और एब्नॉर्मलिटीज़ में क्या-क्या आ सकती हैं। एंड इसी जीनोमिक्स के पूरे ढांचे में कुछ जीन्स होती हैं जो वेरी स्पेसिफिक्स टू द इनफर्टिलिटी हो सकती हैं। उन्हीं में कुछ एबनॉर्मल जीन्स हो सकती हैं, कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं, नॉर्मल से अलग वेरिएंट हो सकते हैं, बट एक्चुअली नॉट एन एबनॉर्मल वन, एंड ऑल दीज विल डिटरमाइन द आउटकम ऑफ अ पेशेंट। तो दैट्स व्हाई जैसे हम कहते हैं ना कि एक दवा हमने आपको भी दी और एक सिमिलर दवा दूसरे को भी दी, आपके ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, दूसरे के नहीं आया। दीज ऑल आर जेनेटिकली ड्रिवन थिंग्स। वाओ! सो इफ आई नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि इस पेशेंट के में एबनॉर्मल जीन्स कौन सी हैं, ताकि वो जीन्स फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग को ना जाए, ताकि वो जेनेटिकली एबनॉर्मल ना हो। सिमिलरली नॉर्मल वेरिएंट्स क्या है कि जो ताकि मैं ये आपको दवा कौन सी लगानी है, आपके लिए बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट कौन सा है, वो गाइडेंस हमें मिल सके। As well as genomics has application on the embryos also. So once embryos been formed, we with the help of genetics we can know which embryo is genetically healthy, as well as just not healthy. Also, we can with the help of carrier screening, we can rule out which common and very significant genes which are recessive are not there in the embryo if they are as well as future में तो आजकल पॉलीजेनिक एम्ब्रियो स्कोरिंग भी आने वाली है, अच्छा, which already is there in has been now in application in वो western क्या होता है? countries. Polygenic uh, polygenic embryo scoring is like genetically there are uh, uh, two diseases. वन इज विच इज जेनेटिकली ड्रिवन एंड और मुझे पता है कि ये नॉर्मल है और एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल मेरे को कोई जेनेटिक डिजीज होगी, अगर मेरे पास कोई एबनॉर्मल जीन है तो मुझे वो डिजीज हो जाएगी। पॉलीजेनिक मीन्स एक जीन एक डिजीज जो एक नहीं मल्टीपल जीन्स से ड्राइव होती है। अच्छा। तो वो उसमें वो अब जब हज़ारों जीन्स ड्राइव होकर के एक डिज़ीज़ को अफ़ेक्ट कर रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो ये डिसाइड करें कि आप में होगी या नहीं होगी, वाओ! ठीक है? Moreover, whenever there is a polygenic disease, it's also be affected by the environmental factor, lifestyle you do. राइट। For example, just like in among the polygenic disease, heart disease, diabetes, hypertension, GI cancer. So ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को मेरे पेरेंट्स में हाइपरटेंशन थी तो मुझे भी होगी, बट आई हैव अ रिस्क if I'm carrying those polygenic disease, but will be contributed and will हुँ, eventually be affected by the lifestyle I've been living and environmental factors which हुँ, make be हुँ, contributing to it. हुँ, Now, polygenic embryo scoring is that there is a possibility where embryo can be selected when can be assessed through the algorithm to find out कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरी हिस्ट्री में हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, तो अमंग द एम्ब्रियोज अवेलेबल विच इज़ हैविंग द लीस्ट पॉसिबिलिटी टू हैव अ कार्डिक डिजीज। एंड फ्यूचर में क्या इस तरह से मे बी एम्ब्रॉय लेवल पे ही प्रिसिजन मेडिसिन हो पाएगी कि उनको पहले ही ट्रीट कर दें अगर ऐसा? दैट इज ऑल्सो रनिंग इन पैरेलल, बट इसको बोलते हैं जेनेटिक एक डायग्नोस्टिक जेनेटिक का भी दो पार्ट हैं, डायग्नोस्टिक जेनेटिक एंड थेरेपेटिक जेनेटिक्स। थेरेपेटिक जेनेटिक अभी बहुत लैग कर रही है, बट इवेंचुअली इट विल कम अप वेयर देयर विल बी पॉसिबिलिटी टू डू द जेनेटिक करेक्शंस एट द वाह! एम्ब्रियो लेवल। बट उसमें वो कितना अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी टू अर्ली टू से हाउ मेनी जीन्स वी कैन मैनेज टू डू द करेक्शंस, एंड कितना एथिकल होगा और कितना पब्लिकली अवेलेबल हो पाएगा, इट्स टू अर्ली टू से। क्योंकि मैंने सुना है सुपर बेबीज़ के बारे यस, में भी यस। राइट फ्यूचर सुपर ह्यूमन्स कि आप सारी अच्छे गुण उनमें शुरुआत से ही डाल दो। एथिकली इसको और रेगुलेटरी वाइज गवर्नमेंट्स वगैरह जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं वो
कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जी, वंस इट इज बिकम अ एक्चुअल टेक्नोलॉजी राइट, लॉट हैज टू बी एब्सोल्युटली। और शायद ये जब भी फर्टिलिटी और जब भी इस तरह की बात आती है तो इसमें वही एथिक्स बिकम्स प्राइमरी इम्पोर्टेंट। और रिसेंटली ऐसा न्यूज़ में कई बार आया है कि कुछ इंस्टीट्यूट दे हैड malpracticed or did all those kind of things which has damaged the trust in fertility and even with the good provider। तो वो ये इस तरह से ट्रांसपेरेंसी कैसे डेवलप की जाए कि पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हो। और मैं थोड़ा सा इसको शायद और मॉड्यूलेट करूँगा कि कैसे एक पेशेंट ये पता करे कि कौन सा फर्टिलिटी सेंटर या आईवी सेंटर इज ट्रस्टेबल और कौन सा नॉन ट्रस्टेबल। very pertinent question there in present time we know couple of months में से बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास आई हैं which is very heart breaking बहुत ही अच्छा being a part of this industry I it's बहुत दर्द होता है ऐसा नहीं होना चाहिए especially with the patient who comes with a trust who trust you for the whole treatment because you are providing an a life to them. Absolutely. Now, when a patient comes to you, I feel like there should be a checklist available with them कि हमें कौन से centers को pick करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए और हम्म। किसको किसको नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए एंड उन पे तो बहुत लिमिटेड 5-10 पैरामीटर्स पे वो लोग ट्रस्ट चेक चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जब भी पेशेंट ये डिसाइड करे तो वो ये चेक करे कि इस पेश इस यूनिट में डू दे हैव एन एक्सपीरियंस टीम और नॉट और फुल टाइमर और अगर एक्सपीरियंस टीम है तो इज इट अवेलेबल अ फुल टाइमर टीम बिकॉज लॉट मेनी centers are there where people come in on a part time basis and on call basis. Now if one in on call basis what who somebody is coming at one part of time another person is coming in another milestone of the patient cycle then continuity of the treatment and the trust of the treatment and the standard of the care which we wanted to provide will be off. सेकंड जो चीज़ है वहाँ पे वो देखनी चाहिए पेशेंट को ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द आउटकम्स दे कैन आर दे ट्रांसपेरेंटली टेलिंग देम द आउटकम पॉसिबल आउटकम्स देम और नॉट व्हेन आई से आउटकम्स डेफिनेटली आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल एआरटी पोर्टल चालू किया है उसमें हर को अपना जो भी आईवीएफ साइकिल हुई है उसका आउटकम डालना है बट अभी भी वो बहुत Limit। फैंसी इन्फेंसी स्टेज में है जी। अ, इसलिए पेशेंट जब भी आए तो उससे पूछना ये ज़रूर पूछना चाहिए कि उस तरह के पेशेंट में अगर वो ट्रीटमेंट वहाँ लेता है, तो उन्होंने अभी तक कितना क्या आउटकम डिलीवर करे हैं और जो भी ऑप्शंस अगर वो बताते हैं, तो उन ऑप्शंस में उनको किसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है, किसमें कितना आउटकम मिल सकता है। थर्ड थिंग जो उन्हें देखना चाहिए कि वो सेंटर एक्रेडिटेशन है कि नहीं है बिकॉज़ व्हेनेवर यू गो फॉर एक्रेडिशंस के लिए बहुत सारी बैकग्राउंड में तैयारियां होती हैं दे यू हैव टू डेवलप एसओपीज फॉर ऑल द प्रोसेसेस यू हैव टू कीप एवरीथिंग स्टैंडर्डाइज Which accreditation people should check? सो नॉर्मली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एनएबीएच होता है बट इन इनफर्टिलिटी इंडस्ट्री में एनएबीएच अभी नहीं अभी आया ही है बट उससे पहले इंडियन एक्रेडिशंस बॉडीज़ हैं लाइक क्यूआई है इंडिया में इंटरनेशनल एक्रेडिशंस भी लिया जा सकते हैं अगर मैं इंदिरा आईवीएफ की बात करूं तो ओवर ऑल 60 आईवीएफ यूनिट्स all of them are being accredited by either QI or RTEC. RTEC is an Australia New Zealand accreditation body. Okay। So whenever these bodies come and do the accreditation for you, they evaluate many things. Whether you have a standard SOPs, you have a standard process or not. What is the risk mitigation planning for you guys? What is the what are the safety norms for the patient embryo and gametes available for you? What are the alarm mechanism to give you proper alarming at the right time if some mishappening is there? Is there disaster management policies there or not? Or how the informed consenting and the counseling has been done for those. So all those things are as a part of an accreditation. So to match up this, we at Indra we have developed
audit mechanism system and audit departments for each sub department also. So we have an audit for MRD, we have an audit for nursing, we have an audit for doctors, we have audits for the clinician, embryologists also. And these audit will keep you on toes, because every audit will give throw you some surprises कि यार ये चीजें और improve करनी है, which is in a good way हाँ, to keep yourself improving at every day. And right. this will definitely, if somebody goes for a center who are accredited, definitely they are safe over there, they can trust on them. Right. Lastly, I feel like they should also ask about the newer technologies are available on, because definitely Right. newer technologies, if not there, like best of incubators, best of laser assisted hatching techniques, definitely these will help us in getting them some edge in the outcomes. Lastly, they should select a patient center Hmm. where it should not be pushy. Hmm. Hmm. Right. They should not be a sales pitch from the हाँ, from the hospital side. क्योंकि अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें मुझे आई डोंट नो हाउ यू पुट इट, बट कई सेंटर्स हैं वो बोलते हैं 100% सक्सेस आउटकम। नाउ एट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो मुझे लगता है कि 100% तो सक्सेस क्वेश्चनेबल है। जिस भी सेंटर ने आप पे अगर आप कोई पेशेंट गया है और वो कहता है कि 100% गारंटी है आपकी सक्सेस की, तो पहले दिन पे ही उस पेशेंट को ये सोच लेना चाहिए कि ये देयर इज अ सम पॉसिबल चीटिंग में हैपन टू हिम, बिकॉज आईवीएफ कैन नॉट गारंटी अ सक्सेस. राइट। इट कैन गिव अगर मैं एक मासेस में बात करूं, तो इन जनरल अराउंड 60 to 70% आईवीएफ सक्सेस हो सकती है, बट एक इंडिविजुअल के केस में इट कैन बी एज लो एज 10% टू एज हाई एज 70, 80, 90%, बट कैन नॉट बी 100%. सो अगर कोई सेंटर ये कह रहा है कि भाई मैं आपको 100% गारंटी दे दूंगा, तो पहले ही दिन पे सोच लेना चाहिए कि दिस सेंटर इज नॉट अ ट्रस्टेबल सेंटर. जब जर्नी है, आपने शुरुआत में बताया था कि आपके यहाँ फ्रॉम इमोशनल सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपके यहाँ काउंसलर्स होते हैं जो कि पेशेंट की जर्नी में थ्रू आउट द जर्नी में सपोर्ट करते हैं बिकॉज इट्स अ इमोशनल जर्नी, राइट? क्या वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि किस तरह का असिस्टेंट है, किस तरह का जर्नी असिस्टेंस है? इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट who are assisting or treating in the journey. I think वो पूरा surrounding system important है, Yes, isn't it? this whole ecosystem, it comes as a package and will always be helpful for a patient, because there are certain decisions which are very very emotionally demanding Hmm. in IVF journey, Hmm. like to accept to go for a donor gametes. Hmm. अगर donor sperm लेना है Hmm. या donor egg लेना है, तो मैं क्या उसके लिए रेडी हूँ, मेंटली रेडी हूँ कि नहीं हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ एट द बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट, बैक ऑफ द माइंड, लॉट मेनी क्वेश्चंस विल बी गोइंग ऑन कि यार ये मेरी जीन्स होंगे कि नहीं होंगे, कि मैं इसको डिलीवर करने के बाद विल दैट मैं with you. विल आई बी एबल टू एक्सेप्ट इट एज माई बेबी और नॉट. एंड दिस में अगर ये चीज़ें टाइम पे कंट्रोल नहीं की जाएं, तो दैट कैन बिकम अ साइकोलॉजिकल इशू एंड साइकेट्रिक इशूज ऑल्सो. So to manage all these things, and as I said, every IVF journey is not a 100%, is not a guarantee. So let many patients do fail. Hmm. 35% patients fail होंगे. Hmm. Now fail patients का भी अपना trauma होता है. उस trauma को उस traumatic event को कैसे psychologically soothen out करना है, Hmm. counseling करनी है. All these are part and parcel of an IVF journey. So in this ecosystem of a good doctor, a compassionate doctor who is providing you precision evidence based data driven treatment, along with the compassionate care from a counselor. So these two are kind of two pillar of an IVF. रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में अभी कौन सा इनोवेशन है जो सबसे ज़्यादा आपको एक्साइट करता है? I'll not say one. अच्छा। I'll handpick मे बी two. टॉप 2 और टॉप I'll handpick top two and top three. One is on uh, one is definitely on the genomic part, ओके, because as I said, everybody has had different genes, राइट। and there are variations, genetic variations are there. Now if we can develop a
uh, before embarking on the journey of a treatment, हाँ, हाँ। if we can run down those tests हुँ, and हुँ। identify कि यार इसको इसको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, हुँ, इस तरह का मुझे ड्रग ड्रग डिसाइड कर, ये ड्रग उसको देनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल मुझे करना चाहिए, हुँ। ये एडिशनल मुझे सपोर्ट्स या एडजुवेंट्स देनी चाहिए, एम्ब्रियो बनने बनने के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ये और एक्स्ट्रा सपोर्ट उसको एक्स्ट्रा लग सकता है. All those information can come out from these genetic testing, which will be a kind of an individualizing the treatment from the हुँ, very beginning. राइट, What it will help you out, it will help you in one way, that it will not, again, not guarantee the treatment, but it will reduce the time to achieve the pregnancy. राइट। सेकंड, अगर मैं अगर और करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली लॉट ऑफ वर्क ऑलरेडी बीन डन, बट देयर शुड बी अ मोर improvised version of lot many AI tools available, where like clinical decision guiding tools can be formulated, which we are also working on. So right now, Indra is doing lot many AI developments. So we are designing, or it's almost going in our last stage, where we are developing a clinical decision guiding system, where it will help the patient, it will help the doctors to identify कि इस पेशेंट्स में मुझे और क्या एक्स्ट्रा टेस्ट करने थे, या कुछ मिस तो नहीं हो गया, या इस पेशेंट्स के लिए मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए था, स्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल क्या बेस्ट होना चाहिए था, बेस्ड द डाटा अवेलेबल, बेस्ड द लिटरेचर अवेलेबल. क्या इसमें कुछ ड्रग देनी है, तो जो गोनाडोट्रोपिन या स्टिमुलेशन की डोजेस देनी है, तो वो कौन सी होनी चाहिए. तो दिस इज जस्ट अ डिसीजन गाइडिंग टूल. It but not will the but AI will not decide. Finally, the decision will be of the doctor, where they basis the patient's condition, patient's other things. Final decision will be of a doctor. Second thing, which can be which we are working on in identifying a AI tool, which will help us in evaluating and analyzing the failures also. So learning from your own mistake is also very, very important for वेरी any नाइस, corporates, राइट। so that we can improvise our own SOPs and protocols, and so the next time whenever such patients come up, we can do a much more better services for them, and the time to getting a pregnancy can be reduced. अब आते हैं इंडिया की तरफ, राइट? इंडिया इज़ पायनियरिंग इन मल्टीपल थिंग्स। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी में तो पायनियर है ही, मेडिकल के लिए भी एक टॉप डेस्टिनेशन माना जाता है। हमें क्या ऐसा करना चाहिए, मे बी पॉलिसी लेवल पे या एज अ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, टू बिकम मे बी अ फर्टिलिटी सेंटर फॉर ग्लोब? कैन वी डू दैट? I'll not comment on the other fraternity, but yes, in ART industry or IVF infertility industry, yes, we can be the global leader. And मैं just to boost the collar, I'm not saying so, because I'm in this industry for the last 20 years. I know what advantages we have. We have an immense patient potential, patient pool to serve, and then those patients, as right now, as I said, we were capturing the data since almost 2017-18. All digital data is there. ये सब, when you evaluate and do the analysis around it, you can know the ifs and buts, all possible nuances in of the industry. You can do the best possible research available, and that's where, once you do the best possible patient centric research, we can lead the upcoming treatment in deciding about what should be the possible treatment for which can be the better version of ART in coming days. तो आप ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास पूल है और बहुत बड़ा पूल है और उसके रिलेटेड डेटा भी है, तो प्रॉब्ली दैट्स वेयर वी कैन, यूजिंग दैट डेटा वी कैन बी द लीडर ऑफ Yes, एआरटी, yes. राइट? Only challenges where it's not that we will be global. जी, We have to work on certain front also, and doctor government are already helping out in creating a ART portal.
so that the data can be at the national level can be captured. Yep. But at the corporate levels, I'll also suggest everybody to have a digital documentation possible, and then some analysis can be done and research can be done to improvise the outcomes and lead the research at the global level. तो सर जैसे हम एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन पे आ रहे हैं, हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है रैपिड फायर। इट इज़ जस्ट यू नीड टू प्रॉब्ली से वन वर्ड और वन सेंटेंस ऑन दिस क्वेश्चंस। यू रेडी फॉर इट? Yes, yes. ऑलराइट, गुड। तो एआई एंड फर्टिलिटी, वन वर्ड। AI is the supplement and complement to you, to a doctor. ठीक, 2-3 वर्ड हुए बट ठीक है। Yeah, it's in a complement. कॉम्प्लीमेंट, ऑलराइट, वंडरफुल। वन फर्टिलिटी मिथ दैट शुड डिसअपियर फॉरएवर। IVF सब चीज़ों का इलाज कर देगा। Cool. One advice for young professional who is planning parenthood. They should evaluate their fertility potential as early as possible, and if possible, they can go for either preservations or take a treatment on a right time. Wonderful. One innovation that redefined fertility care. I'll say genomics. So if we can utilize the genomics in the best possible way, we can do more precision care, as well as a first step for that will be to at least to do carrier screening of our patients. So now majority of lot many AR bodies are there internationally. In the Western, carrier screening has become a part of their routine treatment, whereas we are yet to start it. And डॉक्टर और टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, या दोनों साथ में? Doctor with the technology or an eye. वंडरफुल। एंड सर अब हम टाइम मशीन से फ्यूचर में जाते हैं 20 साल बाद। व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फर्टिलिटी एंड इंडस्ट्री, एंड मेक अ विश काइंड ऑफ थिंग एज अ क्लोजिंग रिमार्क? I'll say there will be a lot more precision medicine going down the line. 2025 की अगर 35 की बात करूँ मैं, तो there will be a lot more precision ART practices will be there because of the genomics, because of the AI, and there may be some intervention from the robotics also, where robots can do the pickups and ICSIs for you guys. But still, they will not gonna replace the humans at the human touch will always be there, because this whole treatment is full of emotion, trust, compassionate care, empathy, which is needed for to the patients. And all these tools will help the doctors not to make a decision for the patient. The final ultimate decision will be taken even in the 2035 will be taken by the doctor and the rheumatologist. Thank you so much, Dr. Vivin. It was pleasure to host you here, and wish you and Indra Fertility Center all the best for the success and future success. Thank you so much again for coming. Thank you, Mohit. Thank you. Nice talking to you, dear. इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको 3 काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक करना है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियो और बना सकें। दूसरा, आपको इस वीडियो को किसी से शेयर करना है जिसको इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। और तीसरा, हमें कमेंट में ये लिख के बताना है कि हम और किस तरह के स्पेशलिस्ट को, मेडिकल डॉक्टर्स को इनवाइट करें और किस तरह के टॉपिक पे हम बात करें। आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।